Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम. Welcome to Educus Vision. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्स SOC 101 Introduction to Sociology का लेसन नंबर 5 which is Research Designs in Sociology. तो चलें शुरू करते हैं. Topic 23 Doing Sociology Research Process. Defining the research problem and research question. तहकीक के मसले और तहकीकी सवाल की वजाहत करना. Developing a research hypothesis and theoretical framework. तहकीक का फ़र्ज़िया और नज़रियाती ढांचा तैयार करना. Selecting an appropriate research design and research methods. मुनासिब तहकीकी डिज़ाइन और तरीक़े का इंतख़ाब करना. Collecting data through primary or secondary sources. बुनियादी या सानवी ज़राए से डेटा इकट्ठा करना. Analyzing and interpreting the data using statistical or qualitative methods. शुमारियाती या मेयार के तरीक़ों से डेटा का तज्ज़िया और तशरीह करना. Drawing conclusions and making generalizations based on the data. डेटा की बुनियाद पर नतीजे निकालना और उसे आम बनाना. Disseminating the research findings through publications or presentations. तहकीकी नताइज को publications यानी अशातों या presentations यानी पेशकशों के ज़रिए फैलाना. Example, conducting a study on the impact of social media on mental health among Pakistani youth. मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी नौजवानों की ज़हनी सेहत पर सोशल मीडिया के असरात पर एक मुतालिया करना. फर्स्ट, वाई डू वी नीड सोशोलॉजिकल रिसर्च. सबसे पहले हमें सोशोलॉजिकल रिसर्च की ज़रूरत क्यों है. वाई कैंट वी सिंपली डिपेंड ऑन कॉमन सेंस ऑन व्हाट एवरीवन नोस. हम सिर्फ आम सोच या जो सब जानते हैं उस पर क्यों नहीं चल सकते. In order to answer a question, we need to move beyond guesswork and common sense. एक सवाल का जवाब देने के लिए हमें अंदाज़े और आम सोच से आगे बढ़ना पड़ता है. We want to know what is really going on. हम ये जानना चाहते हैं कि असल में हो क्या रहा है. To find out, sociologists do research on about every aspect of social life. ये मालूम करने के लिए sociologists सोशल लाइफ के हर पहलू पर तहकीक करते हैं. A research model. Scientific research follows 8 basic steps which are presented as follows. साइंसी तहकीक 8 बुनियादी मराहिल पर मबनी होती है जो ये हैं. Selecting a topic. एक मौजू का इंतखाब करना. The first step is to select a topic. What do you want to know more about? पहला मरहला ये है कि एक टॉपिक का इंतखाब किया जाए. आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं. Many sociologists simply follow their curiosity, their drive to learn more about social life. अक्सर sociologists बस अपनी curiosity यानी तजस्सुस के पीछे चलते हैं और social life के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं. They become interested in a particular topic and they pursue it. वो किसी ख़ास टॉपिक में दिलचस्पी लेते हैं और उसका ताक़ुब करते हैं. Some sociologists choose a topic because funding is available for that topic. कुछ सोशियोलॉजिस्ट किसी मौजू का इंतखाब इसलिए करते हैं कि उस मौजू के लिए फंडिंग दस्तयाब होती है. Others because a social problem such as domestic violence is in the news and they want to help people better understand it and perhaps to help solve it. और दूसरे किसी सोशल प्रॉब्लम का इंतखाब करते हैं जो ख़बरों में हो, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद की, और वो लोगों को इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद देना चाहते हैं और शायद इसे हल भी करना चाहते हैं. Defining the problem. मसले की वजाहत करना. The second step is to define the problem, to specify what you want to learn about the topic.
दूसरा मरहला मसले की वजाहत करना और ये बताना कि आप इस मौजू के बारे में क्या सीखना चाहते हैं। My interest in the homeless increased until I wanted to learn about homelessness across the nation. मेरी दिलचस्पी बेघर लोगों में इतनी बढ़ गई है कि मैं पूरे मुल्क में होमलेसनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। Ordinarily, sociologists' interests are much more focused than this. They examine some specific aspect of the topic, such as how homeless people survive on the streets. आमतौर पर सोशियोलॉजिस्ट की दिलचस्पी इससे ज़्यादा फोकस्ड होती है। वो मौजू के ख़ास मखसूस पहलू का जायज़ा लेते हैं, जैसे कि बेघर लोग सड़कों पर किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। In the case of spouse abuse, sociologists may want to know whether violent and non-violent husbands have different work experiences. स्पाउस अब्यूज़ यानी शरीक हयात के साथ बदसलूकी की सूरत में सोशियोलॉजिस्ट ये मालूम करना चाहते हैं कि क्या वायलेंट और नॉन वायलेंट हस्बैंड्स के काम करने के तजुर्बात में कोई फ़र्क होता है, और दे मे वांट टू लर्न व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस स्पाउस अब्यूज़, या फिर वो ये मालूम करना चाहते हैं कि स्पाउस अब्यूज़ को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। The topics that sociologists study are far ranging. सोशियोलॉजिस्ट जिन मौजू पर तहकीक करते हैं वो इंतहाई वसी हैं। In fact, sociologists do research on any aspect of social life that interests them. दरअसल सोशियोलॉजिस्ट सोशल लाइफ के किसी भी पहलू पर तहकीक करते हैं जिसमें उन्हें दिलचस्पी हो। Reviewing the literature. You must read what has been published on your topic. आपको अपने मौजू पर छपी हुई मालूमात ज़रूर पढ़नी चाहिए। This helps you to narrow the problem, identify areas that are already known, and learn what areas need to be researched. इससे आपको मसले को कम करने और उन इलाकों की शनाख्त करने में मदद मिलती है जो पहले से मालूम हो, और ये जानने में मदद मिलती है कि किन शोबों में तहकीक करने की ज़रूरत है। Reviewing the literature may also help you to pinpoint the questions that you will ask. अदब का जायज़ा लेने से आपको उन सवालों की निशानदही करने में भी मदद मिल सकती है जो आप पूछना चाहते हैं। You might even find out that the problem has been answered already. आप ये भी जान सकते हैं कि मसला पहले से हल हो चुका है। You don't want to waste your time rediscovering what is already known. आप अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहेंगे उसे दोबारा दरियाफ्त करने में जो पहले से मालूम है। Formulating a hypothesis. एक मफरूज़ा तैयार करना। The fourth step is to formulate a hypothesis, a statement of what you expect to find according to predictions from a theory. चौथा मरहला एक हाइपोथेसिस यानी मफरूज़े को वज़ा करना है, यानी वो बयान जो आप किसी नज़रिए की पेशनगोई के मुताबिक हासिल करने की तवक्को रखते हैं। A hypothesis predicts a relationship between or among variables, factors that change or vary from one person or situation to another. एक मफरूज़ा दो या ज़्यादा तग़य्युरात के दरमियान ताल्लुक़ की पेशनगोई करता है। वो अवामिल जो एक शख्स या सूरत हाल से दूसरे में तब्दील होते हैं या मुख्तलिफ होते हैं। For example, the statement, men who are more socially isolated are more likely to abuse their wives than are men who are more socially integrated, is a hypothesis. मिसाल के तौर पर यह बयान के मर्द जो ज़्यादा समाजी तौर पर अलग थलग हैं, ज़्यादा इम्कान है कि वो अपनी बीवी पर तशद्दुद करें बनिस्बत उन मर्दों के जो समाजी तौर पर मुत्तहिद हैं। ये एक मफरूज़ा है। Your hypothesis will need operational definitions, that is, precise ways to measure the variables. आपके मफरूज़े को अमली तारीफ़ों की ज़रूरत होगी, यानी तग़य्युरात को नापने के एग्जैक्ट तरीके। In this example, you would need operational definitions for three variables: social isolation, social integration, and spouse abuse. इस मिसाल में आपको तीन तग़य्युरात के लिए अमली तारीफ़ों की ज़रूरत होगी: सोशल आइसोलेशन यानी समाजी तन्हाई, सोशल इंटीग्रेशन यानी समाजी तौर पर घुलना मिलना, और स्पाउस अब्यूज़ यानी शरीक हयात के साथ बदसलूकी।
चूजिंग अ रिसर्च मेथड, तहकीकी तरीके का इंतखाब. You then need to decide how you are going to collect your data. फिर आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप अपना डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे. Sociologists use 7 basic research methods or research designs which are outlined in the next section. Sociologists 7 बुनियादी तहकीकी तरीके या तहकीकी डिज़ाइंस का इस्तेमाल करते हैं जो अगले हिस्से में वज़ा किए गए हैं. You will want to choose the research method that will best answer your questions. आपको तहकीक का वो तरीका मुंतखब करना होगा जो आपके सवालों का बेहतरीन जवाब दे सके. Collecting the data. Data जमा करना. When you gather your data, you must take care to assure their validity. That is, your operational definitions must measure what they are intended to measure. जब आप डाटा इकट्ठा करते हैं, आपको इनकी दुरुस्तगी को यकीनी बनाने का ख्याल रखना चाहिए, यानी अमली तारीफ़ें उस चीज़ को नाप रही हैं जो आप नापना चाहते हैं. In this case, you must be certain that you really are measuring social isolation, social integration, and spouse abuse, and not something else. इस सूरत में आपको यकीन करना होगा कि आप वाकई सोशल आइसोलेशन, सोशल इंटीग्रेशन और स्पाउस अब्यूज़ को ही नाप रहे हैं, ना कि किसी और चीज़ को. Spouse abuse, for example, seems to be obvious, yet what people consider to be abuse is not regarded as abuse by others. Spouse abuse यानी शरीके हयात के साथ बदसलूकी मिसाल के तौर पर एक वाज़ेह चीज़ मालूम होती है, लेकिन जिसे कुछ लोग बदसलूकी समझते हैं वो दूसरों के लिए बदसलूकी नहीं होती. Which definition will you choose? In other words, you must state your operational definitions so precisely that no one has any question about what you are measuring. आप कौन सी तारीफ़ का इंतखाब करेंगे? दूसरे अल्फाज में आपको अपनी अमली तारीफ़ें इतनी वाज़ेह तौर पर देनी होंगी कि किसी को ये सवाल ना हो कि आप क्या नाप रहे हैं. Analyzing the results. नताइज का तज्ज़िया करना. You can choose from a variety of techniques to analyze the data you gather. आप अपने जमा करदा डेटा का तज्ज़िया करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इंतखाब कर सकते हैं. If a hypothesis has been part of your research, now is when you will test it. अगर कोई मफरूज़ा आपकी तहकीक का एक हिस्सा रहा है तो अब आप उसकी जांच करेंगे. Some research, especially participant observation and the case studies, has no hypothesis. कुछ तहकीक खासकर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी मुश्तरका मुशाहिदा और सूरत हाल के जायज़े में हाइपोथेसिस यानी मफरूज़ा नहीं होता. You may know so little about the setting you are going to research that you cannot even specify the variables in advance. हो सकता है कि आप उस तरतीब के बारे में इतना कम जानते हैं जिस पर आप तहकीक करने वाले हैं कि आप पहले से तग़य्युरात की वज़ाहत ही ना कर पाएँ. With today's software, in just seconds, you can run tests on your data that used to take days or even weeks to perform. आजकल के सॉफ्टवेयर के ज़रिए चंद सेकंड्स में आप अपने डेटा का ऐसे जायज़ा ले सकते हैं जो पहले कई दिनों या हफ्तों में लेते थे. Two basic programs that sociologists and many undergraduates use are MicroCase and the Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. दो बुनियादी प्रोग्राम जो सोशियोलॉजिस्ट और बहुत से अंडर ग्रेजुएट्स इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो केस और स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस यानी SPSS है. Some software such as Metrologist Tool Chest provides advice about collecting data and even about ethical issues. कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि मेट्रोलॉजिस्ट टूल चेस्ट डाटा इकट्ठा करने के और हत्ता के एथिकल यानी अखलाकियात के बारे में भी मशवरा फराहम करता है. Disseminating the results. To wrap up your research, you will write a report to share your findings with the scientific community. अपनी रिसर्च को ख़त्म करते वक्त आप एक रिपोर्ट लिखेंगे ताकि अपने नताइज साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकें. You will review how you did your research, including your operational definitions.
आप ये देखेंगे कि आपने अपनी रिसर्च कैसे की बशमूल अमली तारीफ़ के। You will also show how your findings fit in with what has already been published on the topic and how they support or disagree with the theories that apply to your topic. आप ये भी दिखाएंगे कि आपके नताइज पहले से छपे हुए मौजू के साथ कैसे फिट होते हैं और वो आपके मौजू पर लागू होने वाले नज़रियात की कैसे हिमायत या मुखालफत करते हैं। When research is published, usually in a scientific journal or a book, it belongs to the scientific community. जब तहकीक शाया होती है आमतौर पर एक साइंटिफिक जर्नल या किताब में, ये साइंटिफिक कम्युनिटी की मलकियत होती है। योर फाइंडिंग्स विल बी अवेलेबल फॉर रेप्लिकेशन। आपके नताइज नकल के लिए दस्तयाब होंगे। दैट इज़ अदर्स कैन रिपीट योर स्टडी टू सी इफ़ दे कम अप विद सिमिलर रिजल्ट्स। यानी दूसरे लोग आपके मुताले को दोबारा दोहरा सकते हैं ताकि देखें कि क्या उन्हें भी वही नताइज मिलते हैं। रिसर्च डिज़ाइंस। Topic 24 Surveys. Let us take the example of spousal abuse. तो हम मियाँ बीवी के माबैन बदसलूकी की मिसाल लेते हैं। Suppose that you want to know how many wives are abused each year. फ़र्ज़ करें कि आप ये मालूम करना चाहते हैं कि हर साल कितनी बीवियाँ ज़्यादती के शिकार होती हैं। Some husbands also are abused, of course, but let's assume that you are going to focus on wives. कुछ शोरों को भी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि आपका फोकस सिर्फ बीवियों पर है। An appropriate method for this purpose would be the survey, in which you would ask individuals a series of questions. इस मकसद के लिए एक मुनासिब तरीका सर्वे होगा, जिसमें आप अफराद से मुख्तलिफ सवालात पूछेंगे। Before you begin your research, however, you must deal with practical matters that face all researchers, which are as follows. लेकिन रिसर्च शुरू करने से पहले आपको उन अमली मसाइल का सामना करना होगा जो तमाम मुहक्किकीन को दरपेश होते हैं, जो कि ये हैं। Selecting a sample. To investigate spousal abuse, ideally you might want to learn about all wives in the world. सैम्पल यानी एक नमूने का इंतखाब। स्पाउसल अब्यूज़ की तहकीकात के लिए मिसाल के तौर पर आप दुनिया की तमाम बीवियों के बारे में मालूमात हासिल करना चाहेंगे। Obviously your resources will not permit such research and you will have to narrow your population, the target group that you are going to study. ज़ाहिर है आपके वसाइल इस तरह की तहकीक की इजाज़त नहीं देंगे और आपको अपनी आबादी को कम करना होगा, यानी वो टारगेट ग्रुप जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं। Let's assume that your resources, money, assistance, time allow you to investigate spouse abuse only on your campus. फ़र्ज़ करें कि आपके रिसोर्सेज यानी पैसे, असिस्टेंट्स, वक्त आपको सिर्फ अपने कैंपस पर स्पाउस अब्यूज़ की तहकीकात करने की इजाज़त देते हैं। Let's also assume that your college enrollment is large, so you won't be able to survey all the married women who are enrolled. ये भी फ़र्ज़ करें कि आपका कॉलेज इनरोलमेंट बहुत बड़ा है, इसलिए आप सब शादीशुदा औरतें जो इनरोल्ड हैं उनका सर्वे नहीं कर पाएंगे। Now you must select a sample individuals from among your target population. अब आपको एक सैंपल या नमूने का इंतखाब करना होगा, यानी टारगेट पॉपुलेशन में से कुछ अफराद का। How you choose a sample is crucial, for your choice will affect the results of your research. आप कैसे सैंपल को चुनते हैं ये इंतहाई अहमियत रखता है, क्योंकि आपकी चॉइस आपकी तहकीक के नताइज को मुतासिर करेगी। For example, married women enrolled in introductory sociology and engineering courses might have quite different experiences. मिसाल के तौर पर शादीशुदा औरतें जो इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी या इंजीनियरिंग कोर्सेज में इनरोल्ड हैं, उनका तजर्बा मुख्तलिफ हो सकता है। If so, surveying just one or the other would produce skewed results. अगर ऐसा है तो सिर्फ एक या दूसरे का सर्वे करने से skewed results यानी मुतज़लज़ल नताइज बरामद होंगे। skewed results का मतलब है ऐसे results जो दुरुस्त और कायम मकाम नहीं होते,
क्योंकि डाटा किसी तरह से तासुबी या एकतरफा होता है. Because you want to generalize your findings to your entire campus, you need a sample that accurately represents the campus. क्योंकि आप अपने नताइज को पूरे कैंपस में आम करना चाहते हैं, आपको एक सैंपल चाहिए जो कैंपस की दुरुस्त नुमाइंदगी करे. How can you get a representative sample? आप बेहतरीन नुमाइंदगी करने वाले नमूने कैसे हासिल कर सकते हैं? The best way is to use a random sample. बेहतरीन तरीका ये है कि आप रैंडम सैंपल यानी बेतरतीब नमूने का इस्तेमाल करें. This does not mean that you stand on some campus corner and ask questions of any woman who happens to walk by. इसका मतलब ये नहीं कि आप कैंपस के किसी कोने पर खड़े होकर किसी भी औरत से सवाल पूछना शुरू कर दें जो वहाँ से गुजर रही हो. In a random sample, everyone in your population, the target group, has the same chance of being included in the study. एक बेतरतीब नमूने में आपकी पॉपुलेशन यानी टारगेट ग्रुप में हर शख्स को मुताले में शामिल होने का बराबर मौका मिलता है. In this case, because your population is every married woman enrolled in your college, all married women, whether first year or graduate students, full or part-time, must have the same chance of being included in your sample. इस सूरत में क्योंकि आपकी आबादी आपके कॉलेज में दाखिला लेने वाली तमाम शादीशुदा औरतें हैं, चाहे वो पहले साल की स्टूडेंट हो या ग्रेजुएट, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, उन सब के पास सैंपल में शामिल होने का बराबर मौका होना चाहिए. हाउ यू कैन गेट ए रैंडम सैंपल. आप बेतरतीब नमूना कैसे हासिल कर सकते हैं? फर्स्ट यू नीड ए लिस्ट ऑफ ऑल द मैरिड वुमेन इनरोल्ड इन योर कॉलेज. सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में दाखिला लेने वाली सब शादीशुदा औरतों की एक फहरिस्त की ज़रूरत है. Then you assign a number to each name on the list. फिर आप हर नाम को एक नंबर फराम करेंगे. Using a table of random numbers, you then determine which of these women will become part of your sample. एक रैंडम नंबर्स यानी बेतरतीब नंबरों की टेबल का इस्तेमाल करते हुए आप यह तय करेंगे कि इन औरतों में से कौन आपके सैंपल का हिस्सा बनेगी. Tables of random numbers are available in statistic books and online, or they can be generated by a computer. रैंडम नंबर्स के टेबल्स स्टैटिक्स की किताबों में और ऑनलाइन दस्तयाब होते हैं या कंप्यूटर के ज़रिए जनरेट किए जा सकते हैं. Questionnaires and interviews. Even if you have a representative sample and ask neutral questions, you can still end up with biased findings. अगर आपके पास representative sample यानी नुमाइंदा नमूना है और आप गैर जानिबदार सवाल पूछते हैं, तब भी आप मुतासिब नताइज का सामना कर सकते हैं. Questionnaires. Questionnaires is the list of questions to be asked, can be administered in ways that are flawed. Questionnaires पूछे जाने वाले सवालात की फहरिस्त है, ऐसे तरीकों से दी जा सकती है जिनमें खामी हो. There are two basic techniques for administering questionnaires. Questionnaires यानी सवालनामा ज़ेरे इंतज़ाम करने के दो बुनियादी तरीके हैं. The first is to ask the respondents to fill them out. पहला तरीका यह है कि रिस्पोंडेंट्स यानी जवाबदेह लोगों को क्वेश्चनरीज को भरने को कहा जाए. These self-administered questionnaires allow a large number of people to be sampled at a lower cost, but the researchers lose control of the data collection. ये self-administered questionnaires ज़्यादा लोगों को कम खर्चे पर सैंपल में शामिल होने की इजाज़त देते हैं, लेकिन रिसर्चर्स डाटा कलेक्शन का कंट्रोल खो देते हैं. They don't know the conditions under which people answered the questions. उन्हें नहीं पता कि लोगों ने सवालों का जवाब किस हालत में दिया. For example, others could have influenced their answers. मिसाल के तौर पर दूसरे उनके जवाब को मुतासिर कर सकते हैं. The second technique is the interview. दूसरा तरीका इंटरव्यू है. Researchers ask people questions, often face to face,
sometimes by telephone or email. रिसर्चर्स लोगों से सवाल पूछते हैं, अक्सर आमने सामने, कभी टेलीफोन या ईमेल के ज़रिए. The advantage of this method is that the researchers can ask question in the same way. इस तरीक़ेकार का फ़ायदा ये है कि रिसर्चर्स हर सवाल को इसी तरह से पूछ सकते हैं. The main disadvantage is that interviews are time consuming, so researchers end up with fewer respondents. लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंटरव्यूज़ वक्त तलब होते हैं, इसलिए रिसर्चर्स के पास जवाबदेह लोगों की तादाद कम होती है. Interviews can also create interviewer bias. That is, the presence of interviewers can affect what people say. इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूअर का तासुब भी शामिल हो सकता है, यानी इंटरव्यू लेने वाले की मौजूदगी जवाब देने वालों के जवाबात पर असर डाल सकती है. For example, instead of saying what they really feel, respondents might give socially acceptable answers. मिसाल के तौर पर वो कहने के बजाय जो वो वाकई महसूस करते हैं, रिस्पोंडेंट्स ऐसे जवाब देते हैं जो माशरे में काबिल कबूल हों. Although they may be willing to write their true opinions on an anonymous questionnaire, they won't tell them to another person. हालांकि वो एनोनिमस क्वेश्चनरीज यानी गुमनाम सवालनामे पर अपनी असल राय लिखना चाहते हैं, लेकिन किसी दूसरे शख्स को नहीं बताना चाहते. Some respondents even shape their answers to match what they think an interviewer wants to hear. कुछ रिस्पोंडेंट्स अपने जवाब को ऐसे तश्कील देते हैं जो उनके ख्याल में एक इंटरव्यूअर सुनना चाहता है. In some cases, structured interviews work best. कुछ मामलात में structured interviews बेहतरीन काम करते हैं. This type of interview uses closed-ended questions. Each question is followed by a list of possible answers. इस किस्म के इंटरव्यू क्लोज एंडेड क्वेश्चंस यानी इख्तितामी सवालात का इस्तेमाल करते हैं, जहां हर सवाल के बाद एक मुमकिना जवाबात की फहरिस्त होती है, यानी कि MCQs वगैरह. Structured interviews are faster to administer and they make it easier to code, categorize answers so they can be fed into computer for analysis. Structured interviews को मुनज़्ज़म करना तेज़ी से होता है और ये जवाब को कोड यानी दर्जाबंदी करना आसान बनाते हैं ताकि उन्हें तज्ज़िये के लिए कंप्यूटर में फीड किया जा सके. टॉपिक 25 केस स्टडी यानी सूरत हाल का मुतालिया करना. To do a case study, the researcher focuses on a single event, situation or even individual. केस को स्टडी करने के लिए रिसर्चर किसी एक वाक़े, सूरत हाल या किसी फ़र्द पर फोकस करते हैं. The purpose is to understand the dynamics of relationships, power, or even the thought processes that led to some event. मकसद ये होता है कि रिश्तों, ताकत या उन सोचने के तरीक़ों को समझा जाए जो किसी वाक़े का बाइस बनते हैं. Sociologist Ken Levy, for example, wanted to study hitmen. मिसाल के तौर पर सोशियोलॉजिस्ट केन लेवाय हिटमैन यानी किसी कातिल का मुतालिया करना चाहता था. He would have loved to have had many hitmen to interview, but he had access to only one. वो चाहता था कि उसके पास बहुत से हिटमैन इंटरव्यूज़ के लिए होते, लेकिन उसको सिर्फ एक हिटमैन तक रसाई मिल सकी. He interviewed this man repeatedly, giving us an understanding of how someone can kill others for money. उसने इस आदमी का बार बार इंटरव्यू किया, हमें ये समझाने के लिए कि कैसे कोई पैसे के लिए दूसरों का कत्ल कर सकता है. Sociologist Kai Erikson, who became intrigued with the bursting of a dam in West Virginia that killed several hundred people, focused on the events that led up to and followed this disaster. Sociologist Kai Erikson, जो वेस्ट वर्जीनिया में डैम टूटने से मुतासर हुआ था जिसमें कई 100 लोग मारे गए, उसने उन वाक़यात पर तवज्जो दी जो इस तबाही का बाइस बने या इसके बाद रोनुमा हुए. For spouse abuse, a case study would focus on a single wife and husband, exploring the couple's history and relationship. स्पाउस अब्यूज़ के लिए केस स्टडी एक बीवी और शौहर पर फोकस करेगी, जिसमें उनकी तारीख़ और रिश्ते का जायज़ा लिया जाएगा.
As you can see, the case study reveals a lot of detail about some particular situation, but the question always remains. जैसा कि आप देख सकते हैं, केस स्टडी किसी ख़ास सूरत हाल के मुतालिक काफ़ी तफसील ज़ाहिर करती है, लेकिन सवाल हमेशा बाकी रहता है. How much of this detail applies to other situations? ये तफसीलात दीगर हालात पर कितना लागू हो सकती हैं? This problem of generalizability, which plagues case studies, is the primary reason that few sociologists use this method. इसको आम करने का मसला जो किसी सूरत का मुतालिया करते वक्त पेश आता है कि बुनियादी वजह है कि बहुत कम सोशियोलॉजिस्ट इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं. टॉपिक 26 ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदा. Using direct or participant observation to collect data on social behavior and interactions. समाजी रवैये और राब्तों का डाटा हासिल करने के लिए बराह रास्त या मुश्तरका मुशाहिदे का इस्तेमाल करना. Identifying the social setting and context in which the observation takes place. उस सोशल सेटिंग और कॉन्टेक्स्ट को पहचानना जहां ऑब्जर्वेशन होती है, यानी समाजी तरतीब और सियाको सबाक की निशानदही करना जिसके तहत मुशाहिदा किया जाता है. Recording the data using field notes or audio video recordings. फील्ड नोट्स या ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करते हुए डाटा को रिकॉर्ड करना. Analyzing the data using qualitative और quantitative methods. डाटा का क्वालिटेटिव यानी मेयारी या फिर क्वांटिटेटिव यानी मिकदारी तरीक़ों से तज्ज़िया करना. Assessing the strengths and limitations of observational research. मुशाहिदे पर मबनी तहकीक की ताकत और हुदूद का अंदाज़ा लगाना. Example, conducting an observation study on the gender dynamics in Pakistani workplaces. मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में काम की जगहों में जेंडर डायनामिक्स यानी जिनसी उतार चढ़ाव पर एक ऑब्जर्वेशन स्टडी यानी मुशाहिदाती मुतालिया करना. टॉपिक 27 एक्सपेरिमेंट्स यानी तजर्बात. In common sense language, to experiment means to modify one thing in a situation and then compare an outcome to what existed without the modification. आम फहम ज़बान में तजर्बा करने का मतलब होता है किसी एक चीज़ में तरमीम करना और फिर उसके नताइज का मुकाबला उनसे करना जो तरमीम के बगैर थे. Experiments are useful for determining cause and effect relationships between variables. तजर्बात फ़ायदेमंद होते हैं वेरिएबल्स यानी तगय्युरात के दरमियान कॉज और इफ़ेक्ट यानी वजह और असर का तयन करने के लिए. Experimental research builds on the principles of a positivist approach. Experimental research यानी तजर्बाती तहकीक एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच यानी मुस्बत नुक्ता नज़र के उसूलों पर मबनी होती है. Natural scientists like chemists or biologists and researchers in related applied fields like agriculture, engineering, and medicine conduct experiments. नेचुरल साइंटिस्ट जैसे कि केमिस्ट या बायोलॉजिस्ट और उसके मुतालिका शोबे मसलन एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के रिसर्चर्स तजर्बात करते हैं. We use experiments in education, criminal justice, journalism, marketing, nursing, political science, psychology, social work, and sociology to examine many social issues and theories. हम तजर्बात का इस्तेमाल तालीम, क्रिमिनल जस्टिस यानी फौजदारी इंसाफ, नर्सिंग, सियासत, नफ्सियात, समाजी काम और सोशियोलॉजी में करते हैं ताकि बहुत से समाजी मसाइल और नज़रियात का तज्ज़िया किया जा सके. There are three critical steps in an experiment. एक तजर्बे में तीन अहम मराइल होते हैं. Start with causal hypothesis. असबाबी मफरूज़े से शुरू करना. Modify one specific aspect of a situation that is closely connected to the cause. किसी सूरत हाल के एक ख़ास पहलू को तब्दील करना जो कॉज यानी वजह से करीबी तौर पर जुड़ा होता है. एंड कंपेयर आउटकम्स और नताइज का मुआजना करना.
An experiment can powerfully test and focus evidence about causal relationships. एक तजर्बा करामत ताल्लुकात के मुतालिक शवाहिद की ताकतवर तरीके से जांच करता है और उन शवाहिद पर तवज्जो देता है. Compared to other research techniques, it has both advantages and limitations, and these help to see where it is most appropriate. दूसरी रिसर्च टेक्निक्स के मुकाबले में इसमें फ़वाइद और हुदूद दोनों होते हैं जो देखने में मदद करते हैं कि ये कब ज़्यादा मौजू होता है. The experiment is often artificial. तजर्बा अक्सर मसनूई होता है. It is a purposeful simplification of the complex social world. ये पेचीदा सी समाजी दुनिया की एक बामकसद सादगी है. Artificial means that the experimenter consciously controls the study situation and purposely incorporates theoretically relevant variables while removing variables without a causal importance for a hypothesis. आर्टिफिशियल यानी मसनूई का मतलब है कि तजर्बेकार शऊरी तौर पर मुताले की सूरत हाल को कंट्रोल करता है और जानबूझकर थियोरेटिकली रेलेवेंट वेरिएबल्स यानी नज़रियाती तौर पर मुताले का तगय्युरात को शामिल करता है जबकि उन तगय्युरात को दूर करता है जो हाइपोथेसिस यानी मफरूज़े के लिए वजह के तौर पर अहम नहीं होते. Artificial also means a sharpened focus. Artificial also means a sharpened focus and narrowly targeted effects that we may not easily encounter in the natural world. आर्टिफिशियल का मतलब ये भी है कि एक तेज़ तवज्जो और तंग हदफ वाले असरात जिनका हम कुदरती दुनिया में आसानी से सामना नहीं कर पाते. टॉपिक 28 सेकेंडरी डेटा. Collecting data from existing sources such as government reports, archives और surveys. मौजूदा ज़राए से डाटा हासिल करना जैसे कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, आर्काइव्स या सर्वे. Evaluating the quality and readability of the secondary data. सेकेंडरी डाटा यानी वो डाटा जो पहले से मौजूद हो उसके मेयार और पायदारी का तज्ज़िया करना. Using the data to test a research hypothesis or answer a research question. रिसर्च हाइपोथेसिस यानी तहकीकी मफरूज़े को जांचने या तहकीकी सवालों का जवाब देने के लिए डाटा का इस्तेमाल करना. एनालाइजिंग द डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल और क्वालिटेटिव मेथड्स. डाटा के स्टैटिस्टिकल यानी शुमारी या क्वालिटेटिव यानी मेयारी तरीक़ों से तज्ज़िया करना. एक्सेसिंग द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डाटा रिसर्च. पहले से मौजूद डाटा की तहकीक की ताकतों और हुदूद का अंदाज़ा लगाना. Example: Analyzing the demographic trends in Pakistani society using कैंसस डाटा. मसलन कैंसस डाटा यानी मर्दमशुमारी के आदाद शुमार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी माशरे में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स यानी आबदियाती रुझानात का तज्ज़िया करना. Unobtrusive measures. Researchers sometimes use unobtrusive measures, observing the behavior of people who are not aware that they are being studied. Researchers कभी कभी unobtrusive measures यानी गैर मुतसलसल इक़दामात का इस्तेमाल करते हुए लोगों के behavior का मुशाहिदा करते हैं जो इस बात से वाकिफ़ नहीं होते कि उन्हें स्टडी किया जा रहा है. For example, social researchers studied the level of whiskey consumption in a town that was legally dry by counting empty bottles in trash cans. मिसाल के तौर पर सोशल रिसर्चर्स ने एक ड्राई टाउन यानी जहां शराब पीना कानूनी तौर पर मना था वहां विस्की के इस्तेमाल की सतह को ट्रैश कैंस यानी कूड़ेदान में पड़ी एम्प्टी बॉटल्स की गिनती के ज़रिए किया. Researchers have also gone high-tech in their obtrusive measures to trace customers' path through stores. They attach infrared surveillance devices to shopping carts. स्टोर्स में कस्टमर्स के रास्ते का पता लगाने के लिए वो शॉपिंग कार्ट्स पर इंफ्रारेड सर्विलेंस डिवाइसेस लगाते हैं. Grocery chains use these findings to place higher profit items in more strategic locations. ग्रोसरी चेन्स इन नताइज का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा मुनाफा देने वाली चीज़ों को बेहतरीन मकामात पर रखा जा सके.
यानी रिसर्चर्स इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देखते हैं कि कस्टमर्स दुकान में किस रास्ते से गुजरते हैं, किस सेक्शन में रुकते हैं और किस किस्म की शॉपिंग करते हैं, ताकि उनकी शॉपिंग बिहेवियर्स को समझ सकें और बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकें। Casino operators use chips that transmit radio frequencies, allowing them to track how much their high rollers are betting at every hand of poker or blackjack. Casino operators chips का इस्तेमाल करते हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज भेजते हैं, जिसमें वो देख सकते हैं कि उनके हाई रोलर्स हर पोकर या ब्लैक जैक हर हाथ में कितनी शर्त लगा रहे हैं। Billboards read information embedded on a chip in your car key. बिलबोर्ड्स आपकी कार की में लगे चिप से एम्बेडेड इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। As you drive by, the billboard displays your name with a personal message. जब आप गुजरते हैं तो बिलबोर्ड आपके नाम और एक पर्सनल मैसेज डिस्प्ले करता है। The same device can collect information as you drive by. वही डिवाइस आपके गुजरते वक्त इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा कर सकती है। Cameras in sidewalk billboards scan the facial features of people who pause to look at its advertising, report their sex, race, and how long they looked. साइडवॉक्स यानी फुटपाथ के बिलबोर्ड्स में लगे कैमरास उन लोगों के चेहरे के फीचर्स को स्कैन करते हैं जो उनके इश्तारात को देखने के लिए रुकते हैं और उनकी जिन्स, नस्ल और देखने का वक्त रिपोर्ट करती हैं। The billboards, which raise ethical issues of invasion of privacy, are part of marketing, not sociological research. ये बिलबोर्ड्स जो प्राइवेसी के इन्वेजन का एथिकल इशू यानी राजदारी के अखलाकी मसाइल को उठाते हैं, मार्केटिंग का हिस्सा है ना कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च का। Secondary analysis. In secondary analysis, a fourth research method, researchers analyze data that others have collected. सेकेंडरी एनालिसिस यानी पहले से मौजूद तज्ज़िये में जो चौथा तहकीक करने का तरीका है, उसमें रिसर्चर्स उस डाटा का तज्ज़िया करते हैं जो दूसरों से इकट्ठा किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वर टू एनालाइज द ओरिजिनल इंटरव्यूअर्स फ्रॉम ए स्टडी ऑफ वुमेन हु हैज़ बीन अब्यूज्ड बाय देयर हस्बैंड्स, यू वुड बी डूइंग सेकेंडरी एनालिसिस। मिसाल के तौर पर अगर आप उन असल इंटरव्यूज़ का तज्ज़िया करें उन ख़वातीन के मुताले से जिनके साथ उनके शौहरों ने ज़्यादती की थी, तो आप सेकेंडरी एनालिसिस कर रहे होंगे। Ordinarily, researchers prefer to gather their own data, but lack of resources, especially money, may make this impossible. आमतौर पर रिसर्चर्स को अपना डाटा इकट्ठा करना पसंद होता है, लेकिन वसाइल की कमी, खासकर पैसे की कमी, ये मुमकिन नहीं बनाते। In addition, existing data could contain a wealth of information that wasn't pertinent to the goals of the original researchers, which you can analyze for your own purposes. इसके अलावा मौजूदा डाटा में ऐसी मालूमात भी हो सकती हैं जो असल रिसर्चर्स के मकासद के मुतालिक नहीं थी, जिसका आप अपने मकसद के लिए तज्ज़िया कर सकते हैं। Like the other methods, secondary analysis also poses its own problems. दूसरे मेथड्स की तरह सेकेंडरी एनालिसिस के भी अपने मसाइल होते हैं। How can a researcher who did not carry out the initial study be sure that the data were gathered systematically and recorded accurately and that biases were avoided? एक रिसर्चर जो इब्तदाई मुताले में शामिल नहीं था कैसे यकीन कर सकता है कि डाटा को मुनज़्ज़म तरीके से जमा किया गया और सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया था और तासुब से बचाया गया था। This problem plagues researchers who do secondary analysis, especially if the original data were gathered by a team of researchers, not all of whom were equally verified. ये मसला उन रिसर्चर्स के लिए मुसीबत बनता है जो सेकेंडरी एनालिसिस करते हैं, खासकर अगर असल डाटा एक रिसर्चर्स की टीम ने इकट्ठा किया हो जिसमें हर शख्स यकसा तौर पर अहल नहीं था। डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज़। The fifth method that sociologists use is the study of documents, recorded sources. पांचवा तरीका जो सोशियोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो दस्तावेज़ात यानी रिकॉर्ड शुदा ज़राए का मुतालिया है।
To investigate social life, sociologists examine such diverse documents as books, newspapers, diaries, bank records, police reports, immigration files, and records kept by organizations. सोशल लाइफ की छानबीन करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट मुख्तलिफ दस्तावेज़ात का जायज़ा लेते हैं, जैसे कि किताबें, अखबार, डायरियों, बैंक रिकॉर्ड्स, पुलिस रिपोर्ट्स, इमिग्रेशन फ़ाइलों और मुख्तलिफ तंजीमों के पास रखे गए रिकॉर्ड्स. The term documents are broad, and it also includes video and audio recordings. डॉक्यूमेंट्स का लफ्ज़ वसी है और इसमें वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी शामिल हैं. To study spouse abuse, you might examine police reports and court records. स्पाउस अब्यूज़ का तज्ज़िया करने के लिए आप पुलिस रिपोर्ट्स और अदालती रिकॉर्ड्स का जायज़ा ले सकते हैं. These could reveal what percentage of complaints result in arrest and what population of the men arrested are charged, convicted or put on probation. ये ज़ाहिर कर सकते हैं कि कितने फ़ीसद शिकायत के नतीजे में गिरफ्तारी अमल में आती है और उनमें से कितने मर्दों पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है, सज़ा सुनाई जाती है या प्रोबेशन पर रखा जाता है. If these were your questions, police statistics would be valuable. अगर ये आपके सवालात होते तो पुलिस के आदाद-ओ-शुमार कीमती होते. Topic 29 Research Ethics यानी तहकीकी अखलाकियात. In addition to choosing an appropriate research method, we must also follow the ethics of sociology under American Sociological Association. एक मुनासिब तहकीक के तरीके का इंतखाब करने के अलावा हमें सोशियोलॉजी की अखलाकियात का भी पाबंद होना चाहिए, ऐसा कहना है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन का. रिसर्च एथिक्स रिक्वायर ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड ओपननेस, मीन्स शेयरिंग फाइंडिंग्स विद द स्पेसिफिक कम्युनिटी. रिसर्च एथिक्स यानी तहकीकी अखलाकियात के लिए ईमानदारी, सच्चाई और खुलेपन की ज़रूरत होती है. ओपननेस यानी खुलेपन से मुराद साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ अपने नताइज को शेयर करना. एथिक्स क्लियरली फॉरबिड द फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स. एथिक्स यानी अखलाकियात वाज़े तौर पर नताइज की गलत बयानी से मना करती है. दे ऑल्सो कंडेम प्लेजरिज्म, दैट इज स्टीलिंग समवन एल्स वर्क. ये प्लेजरिज्म को भी गलत कहती है, यानी किसी दूसरे के काम को चुरा लेना. Another ethical guideline states that research subjects should generally be informed that they are being studied and should never be harmed by the research. एक और एथिकल गाइडलाइन यानी अखलाकी हिदायत ये कहती है कि तहकीकी मज़ामीन को आम तौर पर बताया जाना चाहिए कि उन्हें स्टडी किया जा रहा है, यानी जिन लोगों को स्टडी किया जा रहा है उन्हें ये बात पता होनी चाहिए और रिसर्च की वजह से कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. Ethics also require that sociologists protect the anonymity of those who provide information. एथिक्स का तकाजा ये भी है कि सोशियोलॉजिस्ट उन लोगों की एनोनिमिटी का तहफ़्फ़ुज़ करें जो मालूमात फ़राहम करते हैं. एनोनिमिटी से मुराद है गुमनामी, यानी जो लोग मालूमात देते हैं उनकी शनाख्त को मख्फी रखा जाए. Sometimes people reveal things that are intimate, potentially embarrassing or otherwise harmful to themselves. कभी कभी लोग ऐसी बातें शेयर करते हैं जो इंतहाई इंटीमेट, शर्मिंदा करने वाली या उनके लिए नुकसानदेह होती हैं. Finally, although not all sociologists agree, it generally is considered unethical for researchers to misrepresent themselves. आखिर में अगरचे तमाम सोशियोलॉजिस्ट इस बात से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन आमतौर पर यह गैर अखलाकी समझा जाता है कि रिसर्चर्स अपने आप को गलत तरीके से पेश करें. This concludes our lesson number 5. We would love to hear your thoughts on how we taught. Feel free to leave a comment with any suggestions for improvement. If you enjoyed the lesson, please subscribe to our channel and support us as we continue with the course. Thank you for your time. Allah Hafiz.